Very good afternoon to my dear students of Standard 9, and congratulations also as you have moved to another class, and now your responsibilities have increased and you people have to focus more on your studies. That means you have to pay attention towards your studies very seriously. Okay, and apart from the lectures or the explanation which the teacher is giving and the notes which the teachers are providing you, you have to do the self study also. And now you have to indulge yourself in focusing on your studies, and have to give more time. You have to increase the study time. Okay, so with this I would like to give my best wishes to you people, and also want to start the chapter of civics. As in the civics, the first chapter has been deducted or been excluded from the syllabus by CBSE. So that is why I am going to start your syllabus from the second chapter. Okay, the first chapter is democracy in the contemporary world. That has been deducted last year from the syllabus. But now your syllabus starts with the second chapter, that is what is democracy and why democracy. So basically the three main features, or you may say the points on which we will be focusing on these chapters are meaning and features of democracy, then importance of democracy, and alternatives of democracy. So now let us take first what is the meaning and what are the features of democracy. Yes, so what basically is the meaning of democracy? The meaning of democracy is a government which is elected by the people. Okay, so a government which is being elected by the people. That means in India we are following this government. Which type of government we are following? Democratic type of government. And you may see in our country the representatives are being elected by the the candidates are being elected by the representatives, that is through voting. That means one vote, one value. Every citizen has a right to vote, but after the age of 18. So what exactly, or what is the definition of democracy? The easiest definition of democracy is government of the people for the people and by the people. Yes, so what is the easiest definition of democracy? It is a government of the people, for the people and by the people. That means a government, ऐसी government जो of the people means of the people, for the people and by the people. Why it is said by the people? क्योंकि जितने भी जो गवर्नमेंट कैंडिडेट्स होते हैं या गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो किसके थ्रू आते हैं? थ्रू इलेक्शंस. और इलेक्शंस में वोट कौन कास्ट करता है? द कॉमन पीपल. सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग सेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, क्योंकि उन्हें जो वर्क करना होता है वो सिर्फ किससे रिलेटेड वर्क करना होता है? जो जिसमें किसका बेनिफिट हो? लोगों का. ओके, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. देन ऑफ द पीपल अगेन मीन्स द सेम थिंग. दैट मीन्स जो गवर्नमेंट लोगों के लिए बनी हो, लोगों के द्वारा बनी हो और लोगों के लिए ही काम करने के लिए बनी हो, दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज the democratic type of government. Now let us take some of the examples.
as see, I am not having a book, so I'll be concerned. I'll be taking the concern or taking the help of my mobile, as the pictures are the pages of your chapter. I have got it through WhatsApp. Okay. So as I've told you, a government in which the rulers is being elected by the people is known as democratic type of government. Okay, now let us take some of the examples. Like in Myanmar, who is the ruler? The army is the ruler. Okay, so the dictators like Pinochet in Chile or the president Nkrumah's rule in Ghana was not democratic. They were see why these type of government, they are not said to be democratic. Why? Because they comes under the category of dictatorship. What is dictatorship? In which only one man rule is being followed. That means कि जो रूलर होता है वो किसी को कंसर्न नहीं करता. उसमें सिर्फ और सिर्फ डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि वन मैन रूल का मतलब क्या होता है, या वो होता है कि जो रूलर होता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप ही आइडिया सोचता है, अपने आप ही डिसीजंस लेता है. उसमें किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. उसमें जिसमें उसे लगता है कि उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोचता है. Okay, then let us take a very common example of Pakistan. Okay, you must have seen the president Musharraf. उनके पास जो प्रेसिडेंट थे मुशर्रफ, जो उस टाइम पर, तो उनके पास क्या अथॉरिटीज़ थी कि वो नेशनल और स्टेट असेंबलीज़ को डिसमिस कर सकते थे. तो फाइनल जो पावर था वो किसके हाथ में था? आर्मी के या जनरल के हाथ में था. सो उस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है पाकिस्तान की. क्यों? क्योंकि वो इलेक्शंस के थ्रू तो आती है, इलेक्शंस तो होते हैं वहाँ पर, लेकिन फिर भी जो परवेज़ मुशर्रफ थे, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या कर रखा था कि जितने भी मतलब उनके हाथ में सारी अथॉरिटीज़ थी, वो स्टेट असेंबलीज़ और नेशनल असेंबलीज़ को डिसमिस करने की अथॉरिटी थी. तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर टाइप की या परफेक्टली डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. फिर what is the other feature of democratic type of government? कि सबसे पहले जो यहाँ इसका फर्स्ट फीचर होता है वो ये है कि यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं. दैट मीन्स कि सबसे पहला जो फीचर है वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सबसे पहला फीचर डेमोक्रेसी का क्या होता है कि इट मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. सो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमेशा मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो उसको चेंज करने के लिए वोटिंग शुड बी देयर, इलेक्शन शुड बी देयर. और उसमें क्या होना चाहिए? किसी तरह का किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, ना कोई फोर्स होना चाहिए. अपनी मर्जी से जिसे आप चाहें उसे आप वोट दे सकते हैं. ओके, सो लेट अस टेक वन एग्जांपल कि मेक्सिको में जो इलेक्शंस होते हैं वो हमेशा 6 इयर्स के बाद होते हैं, लेकिन 1980 से
sorry. Now the second feature is कि every citizen, that means second one is each adult citizen having one vote and each vote has one value. Now the second feature is each adult citizen having one vote and each vote has one value. That means कि जो भी सिटीजन जिनकी एज 18 या 18 के अबव है उन सबको राइट है वोट कास्ट करने का. ओके, और हर एक वोट की अपनी एक वैल्यू है, उसे हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ द थर्ड फीचर क्या है हमारा? नाउ नेक्स्ट वन इज कि जो डेमोक्रेसी है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. पॉलिटिकल इक्वालिटी का मीनिंग क्या है कि कोई भी चाहे वो रिच हो या पुअर हो या किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी स्टेट, कहीं को भी बिलोंग करता हो, लेकिन वो उसके पास क्या अथॉरिटी होनी चाहिए? सिर्फ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री. तो वो अपने आप को नॉमिनेट कर सकता है. ओके, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट या एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग ही अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह खड़े हो सकते हैं इलेक्शंस में. ओके, सो एवरीबडी हैज़ अ पॉलिटिकल राइट ऑफ इक्वालिटी. Now the question arises, why only democratic type of government? हम सिर्फ democratic type of government को ही क्यों ऑप्ट करें? क्यों नहीं हम dictatorship को ऑप्ट करते हैं, या क्यों नहीं हम किसी और तरीके के रूल को ऑप्ट करते हैं? So the answer will be, now we will be taking the points in favor also and against also of this question. Okay, so first let us take the points against why only democracy. See, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. ओके, जैसे अगर हम इंडिया का एग्जांपल लें
तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और उनके बीच में इलेक्शंस होते हैं, मतलब दे आर राइवल्स ऑफ ईच अदर, ठीक। तो हर एक पार्टी ये चाहती है कि हमारी जो है सेंटर में और स्टेट में गवर्नमेंट बने, ठीक है। तो उसके लिए उसे क्या करना है कि बहुत सारे वो फेयर मीन्स भी यूज़ करती है और अनफेयर मीन्स भी यूज़ करती है ताकि वो गवर्नमेंट बना सके, ओके। ताकि उनकी जो है ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट और गवर्नमेंट का फॉर्म कर सके जब उसकी मतलब मेजॉरिटी आए, मेजॉरिटी पार्लियामेंट में उसको प्रूफ करनी होती है, ठीक है। और मेजॉरिटी का प्रूफ होती है जितनी भी सीट्स हैं पर्टिकुलर उसके अंदर से अगर हाफ से ज़्यादा एक पार्टी के पास आती है तभी वो गवर्नमेंट बना सकती है, ओके। सो नाउ लेकिन अब क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग अपने आप को जिताने के लिए, विन करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी अनफेयर मीन्स भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि तो ये वाली जो चीज़ है ये डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए, isn't it? Then in a democracy, people's will is ascertained by each adult citizens having one vote and each vote has a value, ठीक है। Then the pillars of democracy are the sovereignty of the people, government based on the consent of the government, majority rule, minority rights, guarantee of basic human rights, free and fair elections, equality before law. So these are the points which are in favor. Constitutional limits on government, values of tolerism, pragmatism, cooperation, and an exceptional example is that of Russia's transition. So now हियर इन अ डेमोक्रेसी सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक एडल्ट का अपना एक वोट होता है, वो अपना वोट कास्ट करना उसका राइट है और उसके हर एक पर्सन के, हर एक सिटीज़न के वोट की अपनी एक वैल्यू होती है, ओके। देन डेमोक्रेसी के पिलर्स क्या हैं? नाउ द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट, दैट मीन्स कि बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है उसकी कंसर्न क्या होती है कि मेजॉरिटी जो है वो हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी हमेशा रूल करती है। मेजॉरिटी कौन सी होती है? जब हाफ से ज़्यादा, सपोज 252 सीट्स हैं और उसका जो हाफ होता है तो उससे आपको लाइक 130 या 135 सीट्स अगर किसी ने ले लिए, पर्टिकुलर पार्टी ने किसी और को इन्वॉल्व किए बिना, तो वो क्या हो जाएगा? मेजॉरिटी हो जाएगी, ओके। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होंगी वो ही रूल करेगा। और माइनॉरिटी राइट्स, लेकिन उसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अपने राइट्स होते हैं। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो क्या गारंटी करता है? ह्यूमन राइट्स की अपना एक पर्टिकुलर, हर एक ह्यूमन बीइंग के अपने अपने राइट्स होते हैं। देन अनदर फीचर इज़ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ऑल्सो। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब कि लॉ की आइज़ में उसमें क्या होता है कि सबका जो स्टेटस है वो इक्वल होता है। सबका स्टेटस इक्वल का मीनिंग क्या होता है कि सबका मीनिंग इक्वल का मतलब क्या होता है कि लाइक अगर एक मिडिल क्लास या पुअर पीपल ने, या वी कैन टेक दिस एग्जांपल लाइक दिस कि एक प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट के बेटे ने भी सेम क्राइम किया है और एक पुअर पर्सन ने भी उसके भी सन ने सेम क्राइम किया है। तो लॉ के आइज़ में क्या होना चाहिए कि दोनों को पनिशमेंट सिमिलर मिलना चाहिए। सो दिस इज़ नोन एज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऐसा नहीं है कि जो प्रेसिडेंट के बेटे हैं उन्हें कम, उनकी जो पनिशमेंट है वो कम हो जाएगी या उनको ज़्यादा अच्छे से कंसर्न किया जाएगा इन कंपैरिजन टू द पुअर। नो, दिस इज़ नॉट। देन
गवर्नमेंट की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स भी होती हैं. देन वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस. Just hold on, I'll be continuing this topic once again. See, I was telling you about democratic government. So, democratic government rules within the limits set by constitutional and citizens right. That means कि जो democratic government होती है वो basically कैसे rule करती है, मतलब उसकी अपनी एक limitations होती हैं कि citizen rights भी होते हैं और उसको कॉन्स्टिट्यूशंस ने भी कुछ लिमिटेशंस दी हैं. वरना तो क्या होगा कि जो भी पार्टी रूल करेगी वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है. इजंट इट? लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक पार्टी जो है सपोज किसी एक रिलीजन को मानती है, वो और लोगों को उसी स्टेट के या उसी कंट्री के और जो लोग होंगे और दूसरे रिलीजन के, उन्हें फोर्स कर सकती है कि आप लोग जो है इसी रिलीजन को फॉलो करो. इजंट इट? सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन हैपन. और उसके साथ साथ क्या होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट इट लाइक्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शन. मतलब उसके पास ये लिमिटेशंस होती है कि अगर वो इलेक्शन विन कर गई है, वन कर लिया है उसने इलेक्शन, तो उसका ये मीनिंग नहीं है कि जो वो चाहे वो कर सकती है. A democratic government cannot do what it likes after winning the election. It has to respect certain basic rule and is accountable not only to the people but also to other independent officials. That means जो democracy होती है, जो democratic type of government होती है, वो इलेक्शंस जीतने के बाद अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे क्या है कि उसको जो है बेसिक जो रूल्स होते हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी है. प्लस अगर वो कुछ भी करती है तो उसके लिए उसे दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट और दैट पर्टिकुलर पार्टी विच इज़ रूलिंग विल हैव टू आंसर टू सर्टन टू द पीपल ऑल्सो एंड टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो. नाउ जो पिलर्स है डेमोक्रेसी के वो क्या क्या है? एक तो सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, दैट मीन्स रिस्पेक्ट. ओके. देन गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन द कंसर्न ऑफ द पीपल, कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट. की जो गवर्नमेंट है वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए? गवर्नमेंट के कंसर्न से, कि जो मेन गवर्नमेंट है. और बेसिकली गवर्नमेंट कौन है? लोगों के बारे में ही, लोगों के लिए ही सोचना है, उनके लिए ही वर्क करना है. देन मेजॉरिटी, ये मैंने आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया था कि मेजॉरिटी जो है वो रूल करती है और माइनॉरिटी के राइट्स को भी क्या करना है, बहुत अच्छे से समझ के उनके भी राइट्स को रिस्पेक्ट देनी है. देन ह्यूमन राइट्स की भी गारंटी होनी चाहिए. देन फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट. देन yes, we were discussing why democracy. So जो points हैं basically वो कौन से points हैं against
देयर हैज़ बीन अ क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेरियस पीपल. लोगों ने बहुत सारे क्रिटिसिज्म दिए हैं, जैसे कि इट क्रिएट्स इनस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रीक्वेंटली. सबसे पहला इसके अगेंस्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि ये इनस्टेबल गवर्नमेंट होती है, कभी भी इसको चेंज किया जा सकता है और इसकी वजह से जो है ना, मतलब जो लीडर्स हैं वो फ्रीक्वेंटली जल्दी जल्दी चेंज हो जाते हैं. देन डेमोक्रेसी इज अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. दैट मीन्स देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी. सेकेंडली डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक और पॉइंट है और वो क्या है कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है और जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो ही रूल करता है और इसके अंदर मॉरल वैल्यूज़ की कोई जगह ही नहीं है. देन सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी इशू इज़ रिजॉल्व, इट लीड्स टू डिले. फिर क्या है, इन्होंने बोला कि एक और जो पॉइंट अगेंस्ट है कि अगर हमें कोई डिसीजन लेना है या गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए लॉन्ग डिबेट्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है और इसकी वजह से एक छोटा सा डिसीजन भी बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, बहुत देर से आता है. देन उसके बाद क्या है कि जो इलेक्टेड लीडर्स हैं दे डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. और जितने भी लोग इलेक्ट होकर आते हैं, जो लीडर्स इलेक्ट होकर आते हैं सॉरी, उनको यही नहीं पता होता कि लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है या लोगों के लिए हमें क्या काम करना है, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं. देन इट लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल करप्शन. और बेसिकली क्या होता है कि डेमोक्रेसी में किस तरह का वो होता है, करप्शन किस तरीके से होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्शंस के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, इसलिए आगे चलकर भी बहुत ज़्यादा करप्शन फेस करना पड़ता है. देन ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम. और बहुत सारे जो नॉर्मल लोग होते हैं, जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि डिसीजन कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इसलिए कभी भी उनके ऊपर डिसीजन नहीं छोड़ना चाहिए. फिर अब नाउ द थिंग्स कम एज आई टोल्ड यू व्हाट इज़ द ऑल्टरनेटिव ऑफ डेमोक्रेसी. वी हैव डिस्कस्ड 3 main points. Now we come to the last one, that is alternative to democracy. To overcome political instability and legislative gridlock associated with democratic rule, expansion of executive power and limits on democratic freedom are being looked for. That means कि क्या हम डेमोक्रेसी के अलावा, मतलब उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, तो उसके अंदर क्या है कि पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी होती है या डेमोक्रेटिक रूल से रिलेटेड जो लेजिस्लेटिव ग्रिडलॉक एसोसिएशन होता है, ओके, उसकी एक्सपेंशन या उसको बढ़ावा देने के लिए या हमें और अच्छे से उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए कि वो और अच्छे से वर्क कर पाए. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं या जो लिमिट्स हैं किसकी, जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम दिया गया है, उसके ऊपर थोड़ा सा हमें दोबारा से सोचने की ज़रूरत है. एक एग्जाम्पल है, एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है कि रशियाज ट्रांजिशन फ्रॉम अनस्टेबल डेमोक्रेसी इन द 1990s टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. एक एक्सेप्शनल एग्जाम्पल किस चीज़ का है, रशिया का. वो कहाँ से ट्रांसफॉर्म हुआ कि एक अनस्टेबल डेमोक्रेसी से 1990 में कहाँ पर आई, वो उसका एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुआ प्लस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई उसके अंदर. सो hence so here what we have discussed in this chapter, basically the 3 features, meaning and the features of democracy, meaning and the features of democracy plus the alternatives of democracy. So students, here we have come to an end of this chapter. I will be providing you the question answers as well as the notes on the WhatsApp group. By the time you have to read the chapter thoroughly and try to sort out and try to find out the queries or the difficulties which you want me to explain it to you. Thank you so much.